distinction in 10th? How many of them got distinction in 12th? How many of them belongs to Marathi background? How many of them belongs to convent background? How many girls are there? How many boys are there? What is the mother tongue of out of them? कितने लोगों की mother tongue मराठी है? So what is this? These are the few questions. And for analyzing these questions, what you have to do? You have to prepare some sort of list of questions, whatever it may be, depend on my instructions. You are getting me? क्या करना होगा आपको? एक क्वेश्चन बनाने होंगे फॉर गेटिंग आंसर टू माय क्वेश्चन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? आपको क्या करना होगा? देखो, आई अगेन रिपीट, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, इट्स वन एंड नियर अबाउट 75 मिनट्स का. इसका बेस ही यही है कि व्हाट इज रिसर्च. अगर आपको रिसर्च क्या ये समझ में आता है, देन एंड ओनली देन आगे वाला ऑल मैटर. अगर वही समझ में नहीं आता है तो आगे वाला डजंट मैटर. गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं फिर से बोलता हूं, इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्लास में 10वीं पास कितने, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि सारे ग्रेजुएशन के. इफ आई आस्क 12वीं पास कितने, फिर भी गलत है. इफ आई आस्क हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर सिक्योरिंग डिस्टिंक्शन इन 10th, डिस्टिंक्शन इन 12th, कितने कॉमर्स बैकग्राउंड के, कितने साइंस बैकग्राउंड में थे, कितने कॉन्वेंट से पढ़े थे, कितने मराठी मीडियम से पढ़े थे, कितने हिंदी मीडियम से पढ़े थे, कितने प्रॉपर भुसावल के, कितने आउटसाइड भुसावल है. तो इस क्वेश्चंस को अगर मैं किसी को पूछता हूँ, इफ आई आस्क वन फेलो कि बाबा जाओ उसके सवाल ढूंढ के आओ, इसके जवाब ढूंढ के आओ, व्हाट ही हैज टू डू, क्या करना पड़ेगा उसको? ही हैज टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ना, 8 to 10 questions, whatever instruction I given to him, and ask every one of you, give me the answer. फिर वो सब लागने के बाद वो एनालिसिस करेगा और फिर वो बोलेगा, सर आउट ऑफ दिस 180 स्टूडेंट 55% belongs to Marathi medium, 45% belongs to English medium, 100 people belongs to Bhusawal, 80 people are outside Bhusawal. Getting my point? 60 people are having Marathi mother tongue, 45 Hindi mother tongue. On which basis he can say that? कहां से बोल सकता है वो? Depend on this activity which is going in our class. So what is this? This is research. This is research. Getting? Now getting? Last benches? थोड़ा थोड़ा. Sorry. Now, the types of research. Technically, there are various types of research based on various research parameters. But broadly speaking, there are 3 types: qualitative research, quantitative research, and mixed research. Qualitative research means the research which is based on qualitative issues. Quantitative research refers the research which is based on statistical values. Statistical values. You might be aware, whether you might be aware or not, मुझे पता नहीं, but right now one very huge national level research is going on. एक पिछले एक महीने से रिसर्च चल रहा है. I am not speaking about the intention of the research. I am not speaking about the target of the research. I am speaking about the fact of the research. एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से. इट्स एंटाइटल्ड नमो ऐप करके, आपने शायद सुना होगा किसी ने. नमो ऐप करके एक रिसर्च चल रहा है. बेस्ड ऑन दैट रिसर्च they will collect the data of whole India from Kashmir to Kanyakumari, and to Gangtok. पूरे इंडिया का रिसर्च वो लोग कर रहे हैं based on number of parameters. So what is this? Why there is a necessity? The basic issue is to decide, to finalize the opinion on anything. What is required? Research. Of your own example. Chalo, take your own example before qualitative and quantitative. Mix. Because the example relates with you are very much easy for you to understand. आपका example ले लो. चलो.
when you go to Haat, Badar Haat, and some hawker offer you t-shirt of 200 rupees, what is your reaction? If you go to market and you visit any Haat, Badar, feriwala asतो na, on road, street hawker, and ask him the t-shirt price, he asked you, he told you 200 rupees. What is your reaction? महाग आहे, अरे रे आता 100लाच पाहिजे. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस 100 में दे रहा है क्या, आप लोग क्या करते हो? वो टी शर्ट ऐसे देखते हो, कपड़ा कुछ समझता है? सूरत के कपड़े वाले को छोड़ के किसी को कुछ नहीं समझता उसमें. फिर भी हम देखते, बारीक घ्या, और अगर जाना तो जाणे खूप गरम होईल. देन आफ्टर, फिर नेक्स्ट वन इज 100 में दे रहा है क्या. फिर हम जाते, मग परत येतो, मी 150, एंड द मोमेंट यू गॉट रियलाइज की 150 को अच्छा है, आप ले लेते हो. आप क्या करते हो? फर्स्टली यू इव्हॅल्युएट दॅट टी शर्ट ऑन द बेसिस ऑफ युअर ओन जजमेंटल की 200 रुपये सांगतोय, बाजूचा 300 सांगतोय, तिकडे 800ला मिळतो, शोरूमला 1500ला मिळतो. आपके दिमाग में फिट है क्या ये? क्वांटिटेटिव. क्वालिटी में समझता नहीं, फिर भी क्वालिटेटिव. फिर दोनों करके आपको जब व्हेन यू गॉट रियलाइज इट्स अफोर्डेबल एट 150, तब आप 150 में उसको लेते हो. हर छोटी छोटी चीज में हम लोग रिसर्च करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि ये रिसर्च है. समझ में? पुढे कसं आहे? नाही नाही, एरो काय करायला लागेल बघा. पार्टिसिपेटचे मेसेज येत आहे. बघा तुम्ही कसं करायला लागेल. मला ते त्याच्यावर काय दिसतंय? सरांचा कॅमेरा मी नाही दिसत चालेल ना, तुम्ही डायरेक्ट मी तिकडे करून बोलू का? नाही, तुम्ही पण दिसायला पाहिजे. कॅमेरा नाही, स्क्रीन फक्त स्क्रीन दिसायला पाहिजे. स्क्रीन शेअर केली, स्क्रीन शेअर केली आहे का? स्क्रीन शेअर केली ना, तर स्क्रीन ते दिसायला पाहिजे ना. हो, पण ती रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, लेकिन ये सर की स्क्रीन है ना, सर दिख रहे हैं ना, तो साथ साथ स्क्रीन शेयर भी दिखनी चाहिए. नहीं ऑनलाइन नहीं दिख रहा है. स्टॉप करके फिर स्क्रीन शेअर केली मॅम, तर स्क्रीन शेअर इथून झालेली आहे. मुलांना ऑफलाईन दिसतंय पण ऑनलाईन नाही दिसत आहे. मुलांना युट्यूबला तिथे स्क्रीन नाही दिसत. सेकंड लॅपटॉपवर करून बघा. हा, करून बघा ना, काही पीपीटी शेअर केली, स्क्रीन शेअर विथ पीपीटी शेअर करा. मला माहित नाही ना, मला काहीच माहित नाही. बरोबर. स्क्रीन शेअर मध्ये तुम्ही पीपीटी शेअर केल्यावर पीपीटी पण पीपीटी ओपन करा. हा, पीपीटी ओपन. हे पीपीटीच आहे ना, ते शेअर केलं नाही मला. मी काय विचारलं मॅडम, हे दोन स्क्रीन आहे आपल्याकडे. सेशन पहिलं आणि पीपीटी, हे पीपीटी आहे. ओके, शेअर नाही होत आहे. होईल ना, होईल. आता बघ रे, दिसते आली आली नाही. स्लाइड में चेंज हो गया. होते दिसतंय का बेटा? हा, सॉरी. तर आता कारण मुलांचे मेसेज यायला लागले ऑनलाईन, तेव्हा सुरू करू. मग हा एरो दाबायचा किंवा पुढे पुढे जाईल. आता दिसेल ना पीपीटी.
ओके तुम्ही ऑपरेट करणार. हो मी करून घेईन हो करून घेईन होते ना आता. होते ओके डन एकदम होतंय ना. होते म्यूट कर नाही हे तो बरोबर आहे. हेलो मतलब बोलने को दिल का असं खूप भाव पाहिजे आपल्याला. हेलो उतने ही सेलेक्ट जाइए नहीं होता नाही ना. नहीं उतना सेलेक्ट जाइए पहिले झाली की नाही. चालेल ना. आता झाली. ते एकाच वेळेला 2-3 वेळेला बटन दाबले गेले ना तिथे. इस पे चला ओके स्लो मोशन मध्ये बोलतो फटाफट दाबले की ते. चलो ओके you might be remember all you might be remember in the beginning session introduction में मैंने बोला था आपको कि what research required patience so you must have patience okay so qualitative ऑनलाइन दिसणार आहे ऑनलाइन चेक करा बेटा ओके चलो तो qualitative quantitative and third one is mixed okay mixed when statistics and analytical and qualitative both parameters are used at that time we can say that it's mixed research okay now this is a general format this is general format of project report प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जनरल फॉर्मेट क्या होता है वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वेरी गुड देन रिव्यू ऑफ में एक इसे आपको नहीं दिख रहा है बट मैं आपको एक बार बोल के सुनाता हूं देन विल डिस्कस इट वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन रिसर्च मेथोडोलॉजी देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फाइंडिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस एंड बिब्लियोग्राफी एक जनरल फॉर्मेट होता है मींस introduction means what if the project is related to out of 3 parameters the project is related to your PG UG level project on based on some company then in introduction there should be a company profile there should be a company profile along with that there should be all the parameters which are required for your research if the project is related to organized company if the project is related on financial matters which will going to submit to financial institution for taking of loan and all those things in introduction the objective and all the parameters for which loan is claimed are mentioned and if the project report is for research purpose then the first question is Ali okay. Then the first question, if the report is project report is based for research, then the first question is what? सबसे पहले the question arise in our mind
का बरं करायचं आहे रिपोर्ट? व्हाय? क्यों करते? व्हाट? इवन कंपनी रिपोर्ट ऑल्सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों करते? व्हाट? सेकंड वन इज सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, सेकंड वन इज व्हाट, क्या करना है, क्या करना है, थर्ड वन इज कहाँ करना है, एंड फोर्थ वन इज फॉर हुम टू डू, के लिए करना है, फॉर हुम टू डू. Introduction gives explanation of all these four parameters, all these four parameters. Then review of literature. Review of literature refers to the literature which already, the matter which already been analyzed, the thoughts, the research which already carried out. रिसर्च उस ऐसी जगह का, ऐसा वो रिसर्च जो ऑलरेडी कर चुके हैं. एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इन वेरी स्मॉल लैंग्वेज, इफ योर टॉपिक इज फंड फ्लो कैश फ्लो, if your topic is fund flow cash flow for any bank, if your topic is working capital management for any bank, review of literature of, suppose for cooperative bank in Jalgaon, Bhusawal district, whatever it may be, the review of literature consists of similar sort of work carried out in previously by some another person which is related to your field. Getting my point? If the issue is based on, suppose if social issue is there, if the issue is based on farmer society in Marathwada region, a topic is like that, then review of literature is includes of previous research done by various researchers, either in by virtue of research paper, by virtue of PhD thesis, by virtue of articles in newspaper, or by virtue of some presentation somewhere. तो सारा किस में आएगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आएगा. Then next one, and which is the heart of this project report presentation, project report format, that is research methodology. How to carry the research? Very first is statement of problem. Why the problem? What is the problem? And why the problem is in existence? And what to do? Remember, in research, problem refers to the point around that the whole research rounds. Two issues are there, either problem or opportunity. If the research is based on past issue, past incidences, and you have to comment what jo ho gaya hai, at that case it is refers to the problem. When the research refers to the, when good some sort of incoming output, and that in that case we might be say that it's prospective research. Now can we will take one very small example of any research topic. Can anybody amongst you tell me any research topic, any project topic which he or she intended to do? कोई बता सकता है कि मला सर रिसर्च करायचा है सर, हम we elaborate that topic either online or offline. If anybody is having any topic with himself or herself, so then feel free to tell me. We'll analyze that topic. किसी के पास है कोई टॉपिक? या बायो प्रिंटिंग क्या करना है? टॉपिक नहीं, टेक्निकल नहीं, बायो प्रिंटिंग. Impact of bioprinting on education sector, like that. Bioprinting.
Okay, one very nice topic from the listener, that is bioprinting, but I'm little bit doubtful कितने लोगों को समझ में आएगा. It's a treatment which it's some sort of printing which required in medical diagnosis. Yeah, ratio analysis. Okay, so ratio analysis is very general topic. Ratios, those who belong to commerce background, particularly from accounting, उनको तो easy समझ में आएगा. In the ratio analysis, what we do, we just compare the ratios, whether current ratio, liability ratio, liquid asset ratio, number of ratios are there, and based on that ratio, we calculate the financial stability of the organization. And financial stability of the organization, why we calculate? Because of three reasons. Firstly, for its employees. Secondly, for its stakeholders. And third, users की कंपनी की पोजीशन. ये रेशियो का यूज है. नाउ द टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. सपोज रेशियो एनालिसिस हम दो साइमल्टेनियस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज रेशियो एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर. अब जस्ट अभी एक कंपनी है जो आप सब लोग जानते हैं एंड विच इज वेरी हॉट कंपनी, दैट इज अदानी ग्रुप. अदानी ग्रुप जानते हैं सब लोग. अदानी ग्रुप, यू माइट बी रिमेंबर few months before, the shares of Adani are collapsed, totally collapsed, and now they lift again. It took time, but they lift. Share collapsed. What was the reason? Inflation, financial inflation, or inflationary showing of the financial interpretations. That might be the reason. Now, if any one of you intended to do research on ratio analysis of Adani Enterprises for the period of 2022 to 24, समझ में आया टॉपिक? रेशियो एनालिसिस, उसके ऊपर उनको करना है. एंड द सेकंड टॉपिक इज, सेकंड आपको करना है बायो प्रिंटिंग, इम्पैक्ट ऑफ बायो प्रिंटिंग ऑन मैनेजर्स विथ स्पेशली रेफरेंस टू मेडिकल डायग्नोसिस. मेडिकल डायग्नोसिस, बायो प्रिंटिंग का क्या इम्पैक्ट है. तो ये जो दोनों चीजें, बोथ आर द डिफरेंट. The first one is for commerce and particularly for accounting students, and second one is for the managerial student who at least having basic degree in biotech, biochemistry, pharma or medical background to understand the biomedical terminologies. ये दो अलग अलग चीज है. Now, then what is the meaning of statement of problem? Still question same. The statement of problem refers to what actually we want to find out. हमको क्या ढूंढना, हमें क्या चाहिए. Now Adani वाला केस है, to know the financial interpretation status of ratio analysis of Adani Corporation during 2020-24. मैंने अपना इस प्रॉब्लम क्या है, अदानी कॉर्पोरेशन के शेयर जो कम ज्यादा हुए, जो भी हुआ, उसका एनालिसिस हमें करना है. क्यों हुआ, am I right? ये हमें करना है. अब तो क्या करना है पता है. इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में से सेकंड क्या निकलता है, द अनदर वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों. चलो एक रेशियो का और कोई टॉपिक बताओ, बोलो. इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टोकरेंसी. एवरीबडी नोस क्रिप्टोकरेंसी. Cryptocurrency means it's a virtual currency which yet have to regularize in India. In several countries like Switzerland, Denmark, it is regularized, but in India it is non-regularized. The most widely used cryptocurrency is Bitcoin. Impact of cryptocurrency on, क्या बोला बेटा आपने, on economy or on economy. It's a very huge topic. We'll just summarize it. Impact of cryptocurrency or understanding and perception of cryptocurrency among students. थोड़ा हम उसको छोटा कर रहे थे, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ओके, समझ लो आपका बीकॉम एमकॉम का कोई डिग्री टीचर ने दिया प्रोजेक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टोकरेंसी ऑन स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ऑन स्टूडेंट्स. तो क्या प्रॉब्लम, क्या आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, टू नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेदर स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट क्रिप्टोकरेंसी और नॉट. पता है या नहीं पता है. अभी मुझे बताओ कितनों को पता है क्रिप्टोकरेंसी, हाथ ऊपर करो. बैठ.
क्रिप्टोकरेंसी. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? टू नो द परसेप्शन, टू नो द एटीट्यूड, वट एवर, या टू नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्रिप्टोकरेंसी अमंग्स द स्टूडेंट्स. सेकंड क्या आएगा? to identify whether students have invested in cryptocurrency or not. number of objectives आएंगे उसमें. तो ये based on objectives, हम लोग एनालिसिस करते हैं. बट बिफोर ऑब्जेक्टिव वन इंपॉर्टेंट इशू इज देयर, एंड दैट इज hypothesis. For ratio analysis, the case related to ratio analysis of Adani, we'll have to assume something. For crypto, we'll have to assume something. As well as for bioprinting, we have to assume something. And what something we have to assume? If we discuss cryptocurrency, हमें एक assumption लेना पड़ेगा. That is, students of undergraduate level are not aware about cryptocurrency, or students of undergraduate level are aware about cryptocurrency. Somewhat aware नहीं बोल सकते, either aware or not aware. So जो हम लेते हैं, if we decide aware, then our hypothesis is students are aware about cryptocurrency. And what will be the reason? What will be the reason? Sorry, what will be the solution? क्या आएगा बाद में? एक तो हाँ आएगा, एक तो ना आएगा. Getting my point? If there is yes, then our hypothesis is proved. If no, hypothesis is reject. And once we consider कि students of UG are aware about cryptocurrency, so this is our null hypothesis. First one, hypothesis. And second one is alternative hypothesis. Second one is alternative. If aware, then second one is not aware. Always remember, basic very first is statement of problem. Problem पहले आता है. Then after, second one is objective and hypothesis. They should go together hand in hand. Hypothesis, until to finalize the hypothesis, we could not be able to final the objectives. क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बच्चों को यही पता है. The first one is क्या ये? Hypothesis. We have to assume something ना. And one important thing is that if I tell you in while deciding the hypothesis, beauty, the opposite of beauty is, you easily say you ugly. Then valley, opposite of valley is आप बोलोगे mountain. Good, opposite of good is bad. Opposite of good is bad. But in hypothesis, it is not like that. If our hypothesis is good, then alternative hypothesis is not good. We do not use the word bad. If hypothesis is good, then alternative is not good. In hypothesis में good का opposite bad कभी नहीं होता. Good means not good. देखो, good, the being good is one issue, not good is another issue, and bad is another issue. Tell me whether not good and bad are similar. एखादा माणूस चांगला नाही याचा अर्थ असा होतो का तो वाईट आहे? चांगलं असण्याच्या विरुद्ध काय आहे? चांगलं नसणं. गेटिंग माय पॉइंट? चांगलं असण्याच्या विरुद्ध चांगलं नसणं, चांगलं असणं आणि वाईट असणं. These are two extreme parameters. So always remember, while deciding the hypothesis, always remember चांगलं असणं आणि चांगला आहे असं नाही, वाईट नाही. गेटिंग माय पॉइंट? So this is hypothesis. पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है. आफ्टर दैट hypothesis की है assume. Third one is from statement of problem and hypothesis. The third originates is objective of the study. 4, 5, 6 objectives of the study. And based on that objectives, फिर हमारी बनती है क्वेश्चनियर. बट अब चलिए हम, अच्छा एक और कोई अलग टॉपिक बताइए. तीनों तो हो गए डिस्कस. एनीवन? आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई बता सकता है? एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. यस बेटा. पार्डन?
Language issues in India. Language issues means regional languages or to speak out language. What do you mean? Issues means in what sense issues? Means I'm not getting properly. Tell me frankly. Yeah. Language barriers in education or okay. So another topic is language barrier in education. A role of language barrier in education. Okay. मतलब बच्चों को बोलना आप में से बहुत सारे लोग हैं. Ample of people amongst you. They want to share something, but they won't dare to share on this diet. They share at themselves in backbenches. So issue is language barriers among students. Language, another research is language barriers among students. So problem क्या है? Title itself a problem. Language barrier among students. बच्चों में language barrier है. ये आपका statement of problem है itself. Now hypothesis. Hypothesis. How do we decide hypothesis? Language barrier. The students of suppose reason is North Maharashtra. The North Maharashtra University students possess language barrier during communication. समझ में? उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के बच्चों में कम्युनिकेशन के प्रति लैंग्वेज बैरियर है. अब इसका उल्टा क्या होगा? The students of North Maharashtra University does not possess language barrier while during communication. समझ में? उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव के बच्चों में लैंग्वेज बैरियर के प्रति लैंग्वेज का बैरियर नहीं है और नहीं है. अगर है तो ऑब्जेक्टिव क्या आएंगे? टू फाइंड आउट द अमाउंट, टू फाइंड आउट द परसेंट ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स अमंग स्टूडेंट, टू परकोलेट, टू परसीव द रीजंस फॉर लैंग्वेज बैरियर, टू फाइंड आउट द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम ऑन लैंग्वेज बैरियर. समझ में आ रहा है? लैंग्वेज बैरियर है तो कितना है, क्यों है, किस तरीके से है, किस तरीके से इसको वाइप आउट किया जाए. ये सारे क्या हो गए? आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए. समझ में? नाउ क्वेश्चन इज क्लियर. रिसर्च में ये तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस आपने क्या किया और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. क्लियर एवरीवन? बेटा लास्ट बेंच वाले काफी स्माइल करके हाँ बोल रहे हैं. सो आई परसीव के सबको समझ में आया. नेक्स्ट वन इज एरिया एंड पीरियड ऑफ स्टडी. एरिया एंड पीरियड ऑफ स्टडी. नाउ फॉर विच एरिया? अब लैंग्वेज बैरियर वाला, अब लैंग्वेज बैरियर वाला एरिया, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्ड्स. इफ लैंग्वेज बैरियर वाला एरिया और बायोप्रिंटिंग वाला एरिया, बायोप्रिंटिंग वाली केस, इफ दैट three different areas are there. See, three different areas are there. First area is this North Maharashtra region. Answer. Second area is tribal area of Nandurbar, Dhadgaon, Dabashi area. And third area is Mumbai suburban, Vashi, Navi Mumbai, Mulund, Thane. Now tell me frankly, whether answers are same or different. We have three areas. First one is Nandurbar tribal area, Nandurbar, Dabashi, Dhadgaon and that period, Taloda. Second one is Jalgaon Jilla, this region. And third one is Navi Mumbai, Vashi, Mulund. मुझे बताइए whether the answers of research are same or different. Different. Why different? Because areas are different, locations are different, and our topic is related to language barrier itself. The language barrier hesitation level is comparatively very high in Nandurbar district, which is moderately high in Jalgaon district, but which is very low in Mumbai suburban. Why? Because of communication, because of inferiority complex, and because of not presenting the things on diet. These are the reasons. Might be. These are the reasons. So that's why area and period of study matters a lot. Area, geographical area. कौन से area में आप study कर रहे हो? That matters. Then next one is
सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। नाउ एक सबसे सिंपल सवाल हमारे पास होता है, एंड वी ऑल पीपल आर फ्रिक्वेंटली हैबिचुअल विद दैट। एक है ना वो किताब है, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं है, चेतन भगत की किताब है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं है, बट if there will be 3 mistakes of PhD research or doctoral research, this mistake will be the first one जो हम लोग करते हैं इन सैंपलिंग एंड डेटा कलेक्शन में। जिस तरीके से समझ में आ रहा है बच्चों? चेतन भगत की किताब है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, पढ़ी है किसी ने? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत नहीं पढ़ी होगी, ठीक है चलो ठीक है पढ़ लेना कभी फिर से, अच्छी है। दिस बुक इज एक्सक्लूसिव फॉर टीन्स लाइक यू पीपल। तो उसमें 3 मिस्टेक्स दिया, इफ देयर विल बी 3 मिस्टेक्स, इफ देयर विल बी 3 मिस्टेक्स। चलो 3 इडियट्स मूवी देखिए, तो 3 इडियट्स, if there will be 3 idiots in research, if there will be, we have to identify 3 idiots in research. The first one is sampling and data collection, जहां पे आप गलती करते हो। The very common found गलती is number of respondents 100, number of respondents 100, percentage 100. Why 100? Because double calculation ना करना पड़े, 25, 30, 45, 50, 60, whatever it may be, but you are in many project reports, the number of respondents are 100 and percentage is 100. तो 100 में से 78, 100 में से 78. How 100? How 100? मुझे एक बात बताइए, if you determine कि भाई आज मुझे डेली कॉलेज जाने के लिए 10 मिनट लगते, 12 मिनट लगते, 12 मिनट 30 सेकंड लगते, मुझे ऐसे 2 दिन बताइए जब आप 12 मिनट 30 सेकंड पे कॉलेज में आए। कभी नहीं होगा। कभी आप 12 मिनट के 30 सेकंड पे आओगे, कब 12:29 पे आओगे, कब 12:31 पे आओगे, कब 12:40 पे आओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आपका रोज का आना जाना भी तय नहीं है, देन हाउ यू कैन से दैट कि सैंपल साइज इज एग्जैक्टली 100? बेसिकली देयर आर rules to decide the sample size. The commonly widely used rule is Pochran formula, which is one formula who decides the sample size amongst the population. अब जैसे ये लैंग्वेज बैरियर वाला केस था, लैंग्वेज बैरियर वाला फॉर नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन, इन नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन देयर आर 65,000 स्टूडेंट्स, 65,000 students. If we discuss Jalgaon district, there are more than 28,000 students who are the student of North Maharashtra University, more than 28,000. So for deciding samples, for deciding the language barrier, your population is 28,000 students. So out of 28,000 students, you have to decide the sample size. Out of 28,000, तो कैसे डिसाइड करोगे? Based on Pochran formula. फार्मूला आप नेट पे देख लेना, कुछ बेस्ड ऑन पोचरन फार्मूला, कंटिन्यूस डेटा एंड इंटरमिटेंट डेटा. सो बेस्ड ऑन दैट द सैंपल साइज विल बी अप्रोक्सीमेट 400, अप्रोक्सीमेट 400. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. 400 कौन से, 400 कौन से? अब सिंपल एक्सरसाइज क्या है? योर गुड नेम बेटा आकाश. नाउ आकाश, अब आकाश ने क्या किया? फॉर कन्वीनियंस 400 करना है ना, ये आगे ले लिया 200, बाहर निकला कोटेचा महिला महाविद्यालय, वहां के ले लिए 100 और 400. आकाश ने क्या किया? कन्वीनियंस सैंपलिंग ले लिया. whereas its name is आकाश, sky is the limit. So he has to find out amongst all 28,000 जलगांव के कुछ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के कुछ, उसमें जलगांव के कुछ, भुसावल के कुछ, यावल के कुछ, रावेर के कुछ, apart from the 40 गांव के कुछ, apart from that some belongs to commerce, some belongs to arts, some belongs to engineering, some belongs to pharmacy. This is expected. So this is stratified sampling. आपको जो सैंपल लेना है जलगांव का, तो उसमें से सिर्फ ये मत लेते हो आप, हर सेगमेंट से लेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटा इन सैंपलिंग. दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. एंड वंस सैंपलिंग इज डन, द नेक्स्ट इशू इज डेटा कलेक्शन. फिर हमारा हो जाता है. फिर नेक्स्ट वन इज if the sample size suggested is 400, the sample size of Akash is 400. Okay, now is it possible कि 450 लोगों के पास गया, सबने भर के दिया, सबने जवाब दिए और सबने अच्छा ही लिखा और सबने पूरा भरा? हो सकता है ऐसा? क्या हो सकता है फिर उसमें? कुछ लोग बना कर देंगे, कुछ लोग क्या कर देंगे? बिना भरत. कुछ लोग गलत लिख देंगे, कुछ लोग बोल के देंगे लेकिन भरेंगे नहीं पूरा, आप इनकम्प्लीट छोड़ देंगे.
Am I right? हो सकता है ना, हो सकता है क्या बेटा, हो सकता है? आप आपसे ही पूछ रहा हूं, हो सकता है? आप हाँ, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जिस द वे ऑफ योर वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पीपल, वो हाँ बोल देगा आपको, बाद में भरेगा नहीं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू दैट यू शुड चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ हिम ओनली, वो भर के दे देगा। सो देयर शुड बी सम factor of safety, and it at least 15 to 20%. So if sample size originally is 400, then you have to take 20% factor of safety margin on it, and you have to decide your probable data collection from 480 people, 400 plus 20% extra, 480 लोगों से आप सैंपल साइज कलेक्ट करोगे। when you collect 480 questionnaires from the market, your sample size is 400. See, again remember, again एक बार मैं repeat करता हूँ, your population is 28,000. Population of Jalgaon students is 28,000. By using quotient formula, sample size is 400. Now you have to collect the 400 data from 400 people. So you consider 20% margin of safety over it, 20% extra. So it goes to 480. Now you distribute questionnaires, 480 questions among the people. और 480 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में now you will get 450 something written questionnaires. बस 25-30 लोग नहीं देंगे. Getting my point? And once we get 450 written questionnaire, you screen all these 450 questionnaires. और फिर उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें 25 क्वेश्चनियर जो है वो इनकम्प्लीट है, छोड़े हुए गए, उसको आप निकाल देंगे। देन यू हैव फाइनल 425 क्वेश्चनियर विद यू। समझ में आया? तो आपके पास 450 क्वेश्चनियर बनेंगे। तो आपका सैंपल 400 का है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इन योर हैंड इज 425, सो कंटिन्यू विथ 425, 400 नहीं पकड़ना है। अंडरस्टैंड? तो इतना प्रोसेस सैंपलिंग का है। और हम लोग क्या करते हैं, सॅम्पल साईज 100 का बरं, डबल कॅल्क्युलेशन करायला लागलं पाहिजे म्हणून। सैंपल पण 100 आणि परसेंटेज पण 100, और एक पहले फटके में समझ में आ जाता है, लाइक 3 मिस्टेक्स ऑफ माय फर्स्ट मिस्टेक इज, ये गलत है, रिपोर्ट ही गलत है, बिकॉज इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस सैंपल साइज इज इन राउंड फिगर, अदरवाइज इट्स ऑलवेज इन 387, 487 आउट में। ओके, देन डेटा कलेक्शन, how to collect the data? 3-4 methods are there. 3-4 methods are there. How to collect the data? Up, the first method is stratified sampling. As I told you earlier, students of art, commerce, science, engineering, all consider. Again, boys and girls equally consider. Again, student miss either first year or final year, because there is extensive level difference between first year student and final year student. We cannot compare FY BCom student with SY MCom student. So वो level है. Based on that, you will have to decide the data collection method. To whom we are going to collect the data? Who are that 425 people? कौन होंगे वो 425 लोग? तो वो डिसाइड होगा। एक है सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सबको स्टेटा में करके उनसे कलेक्ट हो रहा। सेकंड है जजमेंटल सैम्पलिंग, आपको लगता है इससे लेना है, इससे लेना है। थर्ड वन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसे मैंने बोला आपको वेरी फर्स्ट, आप आसपास के सब ले लिए। बट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज सर्टिफाइड डेटा सैम्पलिंग। सर्टिफाइड डेटा सैम्पलिंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अब आफ्टर डेटा कलेक्शन, ये जो आपका वर्क है सारा, इसका स्कोप क्या है? फॉर व्हाट? जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो उसका स्कोप किसके लिए है, वो स्कोप में आता है। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। योर स्टडी इज कन्फाइंड इन विच लिमिट, क्या क्या आपने क्या कंसीडर किया है, और विच पैरामीटर यू हैव नॉट बीन कंसीडर्ड इन योर रिसर्च, दैट इज लिमिटेशन। ये हो गया इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उस डेटा का होता है एनालिसिस। एनालिसिस और इंटरप्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? टू गिव मीनिंगफुल expression, to give meaningful outcome of the collected data. It is interpretation of data.
समझ में? जो डेटा कलेक्ट हुआ है, द क्वेश्चन, ऑल दिस क्वेश्चनियर्स कैन बी tabulated in Excel sheet and by using SPSS software or any kind of software, or even simply on Excel sheet based on the graph charts and bars shown by the Excel Excel software. You can easily find out the trend. The trend, कितने लोग क्या बोलते हैं, कितने लोग क्या बोलते हैं, which people are in favor of which issue, ये आता है सारा आपका interpretation. And once you get entered all the data, you will get trends. How many options, how many secured A option, how many B, how many C, and how many D. You know the trend. And once you get the trend, based on that trend, you wrote an interpretation कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे, फिर इसलिए ऐसा ऐसा मुझे करना पड़ता है. Then testing of hypothesis. Now this activity can be done. This activity can be done on SPSS software, and sometimes in analytical way also. Both. Now I'll tell you both the cases. Now how SPSS and how analytical. If the data is totally in quantitative form, then for getting our hypothesis, for checking our hypothesis, there is one SPSS package. Based on that package, so by deciding the margin of safety and error, you can give all the inputs to SPSS and he will give you the output, whether in which direction your trend is going on. Simple language में समझाता हूँ मराठी हिंदी में. जो SPSS एक सॉफ्टवेयर है, आपका जो सारा डेटा है, आपका एक डेटा, अगर आपकी क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है, जस्ट कंसिडर आपके क्वेश्चनियर में अगर 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 क्वेश्चन मींस एक्सेल की एक रो उसमें 40 क्वेश्चन के आंसर आउट जाएंगे. बेस्ड ऑन दैट एक्सेल शीट, अगर 350 क्वेश्चनियर है तो एक्सेल की 350 आपकी रो बनेगी. वो 350 की 350 रो जब हम SPSS में इंपोर्ट करेंगे, then SPSS gives us the result. If this is based on SPSS, if not on SPSS, if by using Excel, तो अगर 350 में से अगर आप सवाल क्वेश्चन इज लाइक दैट, have you share the stage till date. बच्चों का पूछ रहे लैंग्वेज बैरियर में कि आपने आज तक कभी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस किया है. आउट ऑफ 350 315 लोग बोलते हैं नो और 35 लोग बोल रहे हैं यस एक बार. सो व्हाट इट मीन्स, 90% people, 90% students never face a stage during their academic profile till date, whereas 10% of students have experience to be on the stage. समझ में आ गया? ये हो गया हमारा by using Excel. ये हो गया हमारा एनालिसिस. अब if hypothesis like that, कि क्या था ना टॉपिक, क्या था? लैंग्वेज बैरियर. स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी have language possess language barrier communication. ये है. तो अगर इसको प्रूव करना है, SPSS के बेस प्रूव करना है, we have all values with you. If analytically प्रूव करना है तो like that this question 90% student never face a stage. ऐसे 5-7 क्वेश्चन, दोस्त क्वेश्चन जो इसके रिलेट कर रहे होंगे, वो क्वेश्चंस यू हैव टू जस्टिफाई द क्वेश्चन थ्योरेटिकली. 90% लोगों ने शेयर नहीं किया है, 70% बच्चे कभी परफॉर्मेंस नहीं करते, 65% बच्चे इंग्लिश में जवाब ठीक से नहीं दे पाते. एंड बेस्ड ऑन ऑल दी सर्कमस्टेंसेस आई से दैट द नल हाइपोथेसिस दैट स्टूडेंट्स हेजिटेट, स्टूडेंट्स हैविंग लैंग्वेज बैरियर इज प्रूव्ड. समझ में? तो दिस इज टेस्टिंग our hypothesis either by SPSS or by analytical. Now finding of the study. Now next one is finding of the study. Based on analysis and based on hypothesis testing, the stage comes to reveal, to jot out the findings. Now अब वो क्वेश्चन हमने देखा था कि 90% बच्चे have never been on the stage. तो फाइंडिंग में क्या लिखेंगे? 90% students have never faced the audience. कभी भी 90% पर्सन ने नहीं. क्या हो गया ये? फाइंडिंग कहां से आया? एनालिसिस से. एनालिसिस किसने किया? आपने किया. किन के ऊपर किया? 425 लोगों के ऊपर किया. 425 लोग कौन से? उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, आर्ट कॉमर्स साइंस सब मिलके. तब उस 10% को वैल्यू है, क्योंकि वो 10% कहां से आया है?
रिजल्ट ये सबका एनालिसिस करने के बाद आया। हम लोग वो नहीं करते। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हाँ 90% 80% हम लिख देते, कुछ भी हम कुछ भी लिख देते। वैसा नहीं चलता। वो वैसा आपका FY BCom SY BCom TY लेवल पे चल जाएगा, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल एज इन रिसर्च वर्क it is not acceptable and it is not permitted, because such type of what we can say misleading digits in research are not accepted, और वो आप justify भी नहीं कर पाते। अब फाइंडिंग में 3 टाइप के फाइंडिंग होते हैं, सजेस्टेड, रिवेल्ड एंड इंडिकेटेड। सजेस्टेड मीन्स डेटा इटसेल्फ सजेस्ट कि हाँ ये ऐसा ही है। रिवेल्ड जो आप ढूंढ के आते हो, एंड इंडिकेटेड जो इंडिकेट करते हैं। अब जो एक ही फाइंडिंग था ना मैंने, जो अभी आप बता 90% ऑफ द पीपल नेवर फेस द स्टेज। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। एक नहीं यहाँ मतलब अभी आपको नहीं, सॉरी आपको 3-4 years बैक आई वाज हियर फ्रॉम वन प्रोग्राम। देखो एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, हाउ टू फाइंड फाइंडिंग्स। एक शूज की कंपनी है, शायद मैंने बताया था 4 साल पहले आपको एग्जांपल आता है। आपको देख के ये हॉल देख के मुझे एग्जांपल याद आया मैडम। 4 साल एक शूज की कंपनी है, उन्होंने एक दे सेंड 2 सेल्समैन इन अफ्रीका फॉर सेलिंग अ शूज। वहां जाके देखा दोनों ने, एक बोला या कोई जूता नहीं पहनता मैं अगली गाड़ी से रिटर्न आ रहा हूँ, और दूसरा बोला अरे या कोई जूता नहीं पहनता अपन सबको जूते पहनेंगे, एक कंटेनर भर के मुझे सैंपल वाले जूते भेज दो। सो व्हाट इज इट? इश्यू इज ओनली इन एटीट्यूड एंड इश्यू इज ओनली इन फाइंडिंग टू, इश्यू इज ओनली इन टू सर्च द फाइंडिंग्स। क्या ढूंढा है उसने उसमें से। बोलते हैं ना आसमान में भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, शेर थोड़ा सा एक है ना। तो आपको ढूंढना है 90% का। जब हम बात करते हैं व्हेन वी डिस्कवर 90%, इट वेरी मच क्लियर दैट कि स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस अंडर नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, students of institutes under North Maharashtra University are in very pathetic condition. खूप वाईट परिस्थिती आहे. This is finding wrote by one student based on that. क्यों? Because 90% बच्चे अगर ग्रेजुएशन तक पीजी तक अगर स्टेज पे एक बार भी नहीं आते, then how we can expect from them कि they will sit in front of the corporate and they crack the HR interview. Getting my point? तो ये फाइंडिंग उसमें से, ये फाइंडिंग आपने रिवेल किया। पहला तो वो सजेस्टेड था और इंडिकेटेड वहां दिख रहा है कि ना ओनली 10% शो करता है। तो दिस इज अबाउट फाइंडिंग, हाउ टू जॉट आउट द फाइंडिंग। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। Now conclusion recommendation. What do you conclude from it? Now what you conclude from the research based on finding and hypothesis testing? The next one is finding the research conclusion, finding the conclusion. Now if in our that language barrier case, वही एक सवाल, उसका conclusion आप क्या निकालोगे? What will be the conclusion? It's very simple. The conclusion will be now the conclusion will be the students of there is a staunch communication problem amongst the students. Staunch मतलब खूप, staunch बोले तो खूप जास्त, dark. Staunch means dark. There is a staunch problem of English of communication language barrier the student. ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, क्योंकि एनालिसिस में भी वही लिखते हैं, फाइंडिंग में भी वही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 10% स्टूडेंट आर ओनली, वो क्या लिखते हैं, 90% स्टूडेंट आर वही चीज 3 बार लिखते हो। उस तरीके से लिखना है। एनालिसिस मींस जस्ट टर्शियरी स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दैट इज एनालिसिस। फाइंडिंग, उसमें से आपने क्या ढूंढा, एंड कंक्लूजन मींस
उसमें से आपने क्या कंक्लूड किया? देखो, मर्डर हो गया, पुलिसने जो FIR लिखा ना, तिथे हे दगड पडलेला आहे, तिथून 550 मीटर अंतरावर छोटा दगड पडलेला आहे, तिथून 5 फुटावर हा पडलेला आहे, तिथून हा उडला आहे, बॉडी नैऋत्य ईशान्य पूर्व दिशेमध्ये 25 डिग्री पडलेली आहे. हे क्या, व्हाट इज दिस? FIR. दिस इज अनालिसिस. प्रथम दर्शनी हा खून असावा असे वाटते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, फाइंडिंग. और जो कोर्ट बोलता है ना 4-6 महीने के बाद, हाँ तो खून होता, दैट इज कंक्लूजन. एक सिंपल एग्जांपल बताया मैंने आपको, इससे सिंपल नहीं पता सकता. आपका खुद का एग्जाम एग्जाम होने के बाद आप जो घर पे जाते हो ना, मम्मी पूछते कैसा गया एग्जाम? खूप चांगला गेला, खूप चांगला गेला. देखो, फिर माँ बोलती है आपको कि भाई आप आंसर शीट निकालो, इफ ऑब्जेक्टिव इज देयर आंसर शीट निकालो. मग मॉडेल सगळ्यांचे चेक करून बघ. 99% बच्चे चेक नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज दे ऑलवेज बीन इन द मेंटेलिटी दैट की माझा पेपर चांगला गेला टिल द रिजल्ट कम्स. रिसर्च में ऐसे नहीं होता, रिसर्च में ऐसे नहीं होता. जो गया है फैक्चुअल स्टेटमेंट इज द एनालिसिस बेस्ड, द कमेंट based on the analysis is finding, and what you learn from the finding is conclusion. Getting my point? So do not mix these three with one another. And recommendation, and always remember, this is now we are in the last stage of the research, this presentation. So don't be panic. And again, I'll do not check your much more patience. Just 10 to 10 minutes more. In last, I'll assure you that I'll tell you 2-3 very interesting stories, so that there will be proper what we can, there will be proper justice with your timing. So देखो, in last एक छोटा सा आपको बताता हूँ. इन ड्यूरिंग कंक्लूजन देखो, how in this whole process we, मुझे बताइए, who is decided the topic? You and guide. Okay. Who prepare questionnaire? You. Who collect the data? You. Who interpret the data? You. Who find the findings? You. Who find conclusion? You. मग रिकमेंडेशन गाईड कसं काय सांगेल? In 90% cases, सर आता रिकमेंडेशन काय लिहू? Based on that whole process, you will have to write the recommendation. And always write the recommendation. Always remember one thing, you and system are equally responsible. What it means, in maximum cases, recommendation is like that. Government should do these things. Government should do these things. Government should do. अभी इसमें भी लिख देंगे हम language में. Government should create language labs in institutes. Government should appoint one nodal officer who is looking for the development of the student. Government has created one additional staunch placement cell which is looking after the overall personality level of the student. NDP should do these things. हे मस्त छान असतं ना. He should do this thing. He should do this thing. He should do this thing. But as this is for whom and what did it? देखो, अब अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन एनीवन, बट द मेन एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ. टिल 2014 2014 से पहले एक हम लोग बोलते थे काहीच केलं नाही देश, आपण त्याने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे देश ने कुछ नहीं किया, हमारे देश ने हमारे लिए इसने कुछ नहीं किया, हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया. मोदी जी है, मोदी जी ने थोड़ी सोच बदल दी. हमारे देश ने कुछ नहीं किया, तभी हम क्या बोलते हैं, हमने देश के लिए क्या किया. ये ठीक माय पॉइंट. मोदी जी क्या पूछते हैं, अरे ते जाऊ दे ना, तू काय केलं ते सांग. गेटिंग माय पॉइंट. आपने देश के लिए क्या किया. तो क्या है, सोच बदली. सो in recommendation, always remember, recommendations are strictly applied for those only कि जिनके लिए वो है. अब आप रिकमेंडेशन में आप अगर लिखते हो कि इंस्टीट्यूशंस ने, कॉलेजेस ने उन बच्चों के लिए
कुछ स्पेशल क्लासेस लेनी चाहिए, लैंग्वेज की क्लासेस लेनी चाहिए, वॉट एवर इट में बी एक्सेप्टेबल। बट अगर आप लिखोगे कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट वन नोडल ऑफिसर फॉर, वो आपका गाइड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नाइदर गाइड, नॉट कॉलेज, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिकमेंडेशन, जिसका रोल है उसी को आपको रिकमेंड उस चीज को करना है। लास्ट में बिब्लियोग्राफी, all the references why in review of literature, in like and in introduction chapter, few in RM chapter, all the references have been jotted out in alphabetical sequence in bibliography, and annexure में जो भी आपका क्वेश्चनियर होगा, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, whatever it may, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स होंगी, जो भी होगा whatever it may be that, या अगर जलगांव खानदेश का मैप है, ये रीजन का है, मेडिकल प्रिंटिंग का था, उनका होगा, तो उनके कुछ कंपनी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑल दीज आर एनक्लोज्ड इन annexure. Okay, so any problem? So this is it now. So any problem to anyone, any query to anyone? चलो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आप जब रिसर्च करते हो, सी अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आप जब रिसर्च करते हो तो आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया है ये किसको पता होता है? सिर्फ दो लोगों को पता होता है। किस किस को? आपको, और आपने डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया ये किसको पता होता है? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन डेटा कलेक्शन। नाउ अभी हो गया प्रेजेंटेशन, नाउ आई एम टेलिंग यू कि व्हाट नॉट टू डू। आपने क्या किया रिसर्च में किसको पता तो है? ओनली दो, सिर्फ दो लोगों को पता होता है। किस किस को? आपको, और किस किस को पता होता है? आपको और किसको पता होता है? if guide tells you collect 350 questionnaires, you after a couple of weeks you come with 350 questionnaires. Now what is the generality of that questionnaire? किसको किस किस पता है? सिर्फ दो लोगों को पता है। ज्याच्याकडे फक्त दोन लोकांना माहिती, कोणाला माहिती दुसरा कोण असतो? चलो एक किस्सा आपको देता हूं। एक बार, नाउ सुनो, अब बैक बेंचर्स, ए बेटा लास्ट वाले, हाँ सुन रहे हो? देखो एक बार क्या हुआ, एक कोर्ट में केस चला, मुकदमा खून का। क्या चला? मुकदमा चला खून का। मैंने तो माहिती है बहुत। खून का मुकदमा चला, तो वकील साहब शुरू हो गए। एक्चुअली मैं लॉ भी कर रहा हूँ मैडम, अभी फाइनल ईयर में, बट इसका इस चीज से कोई ये नहीं है। चलो, तो वो वकील साहब ने शुरू कर दिया कि माय लॉर्ड, इस मुलजिम ने इस तरीके से यह मर्डर किया है। कौन बोला हुआ? वकील बनना है आपको? आपको वकील बनना है? नहीं, अच्छा ठीक है, ये तो वकील बनना है तो ठीक है। वकील अगर बनना है तो अच्छी बात है। किसी को वकील बनना है? या आपको बनना है वकील? वेरी गुड। क्या नाम आपका? अरविंद नारखेड़े। वाह, अरविंद को वकील बनना है। चलो, अरविंद के लिए एक शेर है, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। वकील बनना है, वेरी गुड। चलो नाउ कम टू द टॉपिक। तो उसने बोला कि माय लॉर्ड इस तरीके से इसने खून किया है। आफ्टर ड्यूरिंग लंच टाइम लंच तक उसने बताया इसी ने खून किया, इस तरीके से खून किया है। लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में उस आरोपी ने बोला कि मुझे वकील साहब आपसे बात करनी है। तो वकील बोले क्या? तो बोले वकील साहब आप मेरे वकील हैं, आपको मेरे हक में बोलना था, आप भूल गए, आपने मुझे गुनहगार साबित कर दिया। तो वकील साहब बोला अरे आई एम वेरी सॉरी यार, बोले मेरे ध्यान में नहीं रहा, कोई बात नहीं देखता हूँ। आफ्टर लंच
कोर्ट बिगिंस। फिर वकील साहब ने शुरू किया कि माय लॉर्ड, मैंने सुबह जो बोला था उस तरीके से मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है, मेरे मुवक्किल को इस तरीके से फंसाया गया है। शाम होते होते कोर्ट गॉट कन्विंस, हाँ बराबर बोल रहा है ये। शाम को आरोपी बाइज्जत बरी। ना मुझे बताओ, वेयर इज द ट्रूथ? उसने सच में खून किया था नहीं किया था, किसको पता है? सिर्फ 2 लोगों को पता है। आ गए पॉइंट पे? आपने पीएटी, आपने डेटा कलेक्शन किया नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों को पता है। अब उसने खून किया था नहीं किया था, सिर्फ 2 लोगों को पता है। अब आप मरने वाला मत बोले क्योंकि वो मर गया, अगर पीछे से मारा होगा तो पता ही नहीं किसने मारा। सिर्फ एक एक जिसने सही में खून किया था उसको पता है, और दूसरा जो ऊपर से देख रहा है, जो ऊपर से सबको देख रहा है। तो वैसे ही जो 350 क्वेश्चन आपने जमा करके लाई है, वो सिर्फ 2 लोगों को पता है कि ये कितनी ऑथेंटिकेट है, एक आपको और एक ऊपर वाले। तो ऊपर वाले से डरो और जेन्युइन काम करो, क्योंकि जो भी आप लाने वाले हो गाइड वही बोलेगा अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बताओ मुझे एनी क्वेश्चन? हाँ बोलो, आ गया क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन? देखो, वेरी नाइस क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंस अगर पता है आधे भूल जाएंगे, एग्जांपल पता सबको याद रहेगा। ठीक है? महाभारत पता है आपको? महाभारत में वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा दिया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया। हाथी मारने के बाद में वो कृष्ण ने क्या बोला? अश्वत्थामा मर गया। भीम ने बोला अश्वत्थामा मर गया। और धृतराष्ट्र, सॉरी किसने, युधिष्ठिर के पास आए द्रोणाचार्य, उन्होंने पूछा अश्वत्थामा हाथा हाथी? इसने क्या बोला युधिष्ठिर ने? अश्वत्थामा हाथा हाथी। और उसने आगे बोला नरोवा कुंदरवा। तब कृष्ण ने ढोल बजा दिए, बैरियर टू कम्युनिकेशन, रिसर्च बैरियर, ढोल बजा दिए। अश्वत्थामा हाथा हाथी, द्रोणाचार्य ने शस्त्र डाल दिए, उनको मार दिया गया। ये स्टोरी पता है आपको। अब मुझे बताओ द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य ने किया रिसर्च बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा, द डेटा गिवन बाय युधिष्ठिर, एंड ही ट्रस्ट रिलाय ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा कि युधिष्ठिर का डेटा है तो झूठ हो ही नहीं सकता। ये हो गया रिसर्च। उनको क्या करना चाहिए था? इन्व्हेस्टिगेशन। मला दाखव कुठे मिळालाय खरंच माझ्या डोळ्याने। गेटिंग माय पॉइंट? So the basic difference between research and investigation is research can be based on data which is carried out priorly, or the work carried out by some another person, or the same work with different objective. But investigation is the original work and for one particular objective only. आप ये जो आता है ना लैंग्वेज बैरियर, इसका आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो। आपको इसका रिसर्च ही करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ इश्यूज, एंड द स्कोप इज वेरी लार्ज। वेयर एज वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, व्हाई ही बिहेव लाइक दैट, अगर इसकी खोज आपको करनी है, देन एट दैट टाइम इट विल बी इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेट द रीजन, हिज पेरेंटल साइकोलॉजी, हिज चाइल्डहुड साइकोलॉजी, अब तक ये क्यों बिहेव हुआ, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअल करना है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। फॉर अ मॉब, फॉर और किसी का कुछ? बेटा बैक बेंचर्स? नो। एवरीवन, नो इश्यू? तो जब भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करोगे, क्वेश्चनर लाओगे, तो याद रखना 2 लोग हैं। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for such a wonderful session. Guys, आपके कुछ doubts clear हुए? You got very much from the sir, and it is really helpful to you for preparing your project report. So मुझे लगता है कि अभी आप सब ने अपने काम पे लग जाना चाहिए. You have to prepare your project in a proper manner, and I'll
रियली थैंकफुल सर कि आपने आपका बिजी शेड्यूल से आके हमें यहाँ पे गाइड किया, हमारे बच्चों को गाइड किया, एंड दोज पीपल हु आर ऑनलाइन, and I'm really happy that they are joining us and they are getting information from you, and I'm really feel sorry for that people who because of some technical problem light गई बीच में, 2-3 इशू हुए, because of that बीच में कुछ hurdles आए, लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी अच्छे से कंप्लीट हुआ, and I'm really happy for that. Thank you, sir. I really thankful to my students, our HOD, Dr. Mamta Patil ma'am, our Research Center Coordinator, Dr. Rashmi Sharma ma'am, my all dear staff, Sapna Zangle ma'am, Swati Sheke ma'am, Kilesh Patil sir, then Yogita ma'am, Jayashree Chaudhary ma'am, Ekta ma'am, and my dear students. Thank you so much.